Hello dear students, how are you all? This is Rajiv, faculty mathematics, Prince Academy Seeker, and class 10 RBSE students. Till our earlier lecture we have started chapter 7. In last lecture I gave you the trick of magical hexagon. Using that you can understand the relation between the different t ratios. Okay, now we will apply those tricks on the questions of your exercise, and definitely students you will have fun. I promise each and every question is gonna be a very funny for you, because the trick we have learned now, 4 or 5 criteria I told you in the last lecture. In this lecture we will use those. At the right time I will tell you the another criteria of magical hexagon. Okay, so do not worry about anything. Without any delay I am going to start first question, exercise 7.1. First question, exercise 7.1. See students, exercise 7.1, first question. If you see what is given here, if you see what is asked here, see, express all the trigonometric ratios in terms of secant theta. In terms of secant theta. In next question, in terms of cot theta. Okay. Once see beta, these two questions are very easy, and it is up to you. If you want to make it easy, you can make it easy. If you want to make it typical, it's in your hand. It will be complex if you make it complex. If it will be easy if you make it easy. See students, very easy. See, what we have learned? We have learned magical hexagon. Yes or no? Once you understand, beta, once you understand each and every thing I am writing here, and please listen to my words carefully. Okay? See, I am drawing the magical hexagon here. That is too much supportive to solve this question number 1. And very frankly, beta, the trick I am going to tell you to sort out such kind of problems gonna be very beneficial for you. Let me see. I think this portion is not viewable in the, okay. Now see. Now is it viewable? I think it is viewable now. Okay. Now see. What is here? Sin theta, tan theta, secant theta, cos theta, cot theta, cosecant theta. Okay students, magical hexagon I am drawing here. Product of these, what is it I am joining? Is 1, yes or no? Okay. Now see, what is the question? We have to express all the t ratios in terms of secant theta. In terms of secant theta. Okay dear? We have to explain all the t ratios in terms of secant theta. How many t ratios are pending? I am writing this side beta. First you understand each and every one. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, and cosecant theta. These 5 t ratios are pending, and we have to express all these 5 t ratios in terms of secant theta. See beta, whenever such kind of question comes to you, remember these words. First of all, start with the reciprocal of secant. Because आपने टी रेशोज को इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करें इसके रेसिप्रोकल से. इसका रेसिप्रोकल फर्स्ट क्राइटेरिया, yes or no? Sure beta? So can I write cos theta is 1 by secant theta? Yes or no? This is the first answer. That cos theta is equal to secant theta. Cos theta is equal to secant theta. What we did here, we expressed cos theta in terms of secant theta. कितना टाइम लगा?
just a single second. One T ratios we represented. All the things we are going to do in such manner using the help of, with the help of magical hexagon. Everyone just pay attention. See, number one beta, what we did, we go for reciprocal. We went for reciprocal. Now number two, go for identity. Go for identity. Now I will make you understand here, then rough it. Okay? What is the identity of secant? Secant is making the identity with tangent theta. Yes or no? See beta, secant square theta minus tangent square theta is 1. Tangent square plus 1 square is equal to secant square. Yes or no? From here we can also write na, secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta. Yes or no? And it's our choice. According to our need, we are going to use this like this. Here is secant square theta. 1 को इधर शिफ्ट किया -1, इसको उधर शिफ्ट किया टेंजेंट स्क्वायर थीटा. व्हाट डज इट मीन? टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? secant स्क्वायर थीटा -1. यस और नो? सेकंड हेल्प हुआ या नहीं हुआ? नंबर 1 रेसिप्रोकल, नंबर 2 आइडेंटिटी. दोनों से हेल्प हो गई हमारी. क्लियर? अब देखो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा, secant स्क्वायर थीटा -1. क्लियर? आया समझ में? देखो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना. फ्रॉम हियर वी कैन राइट टेंजेंट थीटा इज secant square theta -1. Yes or no? So simple is that. So simple is that. Clear student? Students, sorry. Now see, cos you have obtained, tangent you have obtained. Number 3, beta, what is the reciprocal of tangent? What is the reciprocal of tangent? Tangent reciprocal is cot. Yes or no? इट मीन्स टेंजेंट का उल्टा कोट होगा. क्लियर? अब टेंजेंट आपका ये आया. व्हाट आई एम राइटिंग? आई एम राइटिंग कोट लाइक दिस, secant स्क्वायर थीटा -1. आया आंसर या नहीं आया? बताओ. कितना इजी है. वेरी सिंपल. सो सिंपल. 3 टी रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली और पता ही नहीं चला. क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी सिंपल बेटा, बहुत इजी है. ध्यान से सुने. नंबर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? वी वर टू एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ secant. हमने secant की टर्म्स में इन सभी टी रेशियोज को शो करना था. क्लियर? हमने क्या किया? हमने किया क्या बेटा? हमने सबसे पहले इसके रेसिप्रोकल को पकड़ा. एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ secant? cos. देन पुट cos इज इक्वल टू 1 बाय secant. देन पुट cos इज इक्वल टू 1 बाय secant. फर्स्ट टास्क डन. सेकंड टास्क, फॉर सेकंड वी यूज द आइडेंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि secant की आइडेंटिटी बनती किसके साथ है? secant वाला ट्राइंगल ये है ना, याद करो. ये क्राइटेरिया भी बताया है मैजिकल हेक्सागन का. तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू secant. टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी secant स्क्वायर -1. ओके, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू आएगी secant स्क्वायर -1. Therefore टेंजेंट थीटा विल बी रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा -1. क्लियर? नंबर 3 आप क्या करेंगे बेटा? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. टेंजेंट का रेसिप्रोकल कौन है? कोटेंजेंट. टेंजेंट का उल्टा है कोट. यस और नो? फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ मैजिकल हेक्सागन आई रोट, आई गेव यू इन द फर्स्ट लेक्चर, अर्लियर लेक्चर. क्लियर? तो इसको उल्टा कर दिया तो क्या आ गया? कोट. डन. 3 आइडेंटिटीज डन. नाउ नंबर 4 एंड 5. अगर आप ध्यान से देखें तो साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है? तो अगर एक भी निकाल लिया तो दूसरा निकल जाएगा, उसको उल्टा, उसको पलट देंगे. क्लियर? चलो, अब जो आपके पास ये जो टी रेशियोज आई हैं, इन तीनों में से किसी का यूज करके साइन बना लो या ये कोसेकेंट बना लो, तुम्हारी मर्जी है. देखो बेटा, cos 10 and cotangent. If I see 10 into इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? साइन. यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव
वर्टिसेस इज द मिडल वन। ये क्राइटेरिया भी लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको। तो tan इंटू कोस विल बी साइन। इट कैन बी रिटन एज tan इंटू कोस, यस और नो। tan की वैल्यू क्या है, ये है ना, पुट द वैल्यू ऑफ tan, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, और कोस की वैल्यू क्या है बेटा, 1 बाय साइन, तो इंटू 1 बाय साइन, 1 बाय सीकेंड करोगे, सॉरी, तो यहां पे सीकेंड आएगा, ये आ गया आपका साइन। क्लियर? tan इंटू कोस विल गिव यू साइन। इसी को तो यूज किया हमने। और अगर आप ध्यान से देखें, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। साइन का वापस रेसिप्रोकल क्या है बेटा, कोसिकेंट ना, तो उसको पलट दो। साइन की वैल्यू ये है, कोसिकेंट की वैल्यू आएगी सीकेंट बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, यस और नो। देखो बेटा, सारी की सारी ऑल द 5 रिमेनिंग टी रेशोज वी फाउंड इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, वी फाउंड इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, यस और नो। बहुत सिंपल था। डन स्टूडेंट्स, क्लियर? एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले, वंस यू टेक इट स्क्रीनशॉट, टेकन। नाउ सी स्टूडेंट्स, once you try to understand, let me make the space which is available to solve the question, na? Okay, now see, it is done beta, it is done. Clear? Is this line is viewable? Let me check once, because okay, now so, because camera setting is changed now today and I'm getting confused for the viewable area. Now see beta, can I rough it? For next question I will re-explain all the things and then you will get each and everything clear, don't worry. Okay, now see students, again if you see question number 2, once you see question number 2, what is question number 2 beta? We have to express sin, secant, tan in terms of cot. We will express all the t ratios, don't worry. We will express all the t ratios in terms of cot. Once you see what I am drawing here, magical hexagon. First of all you draw your magical hexagon, and this is, and you, I think from the very first question you all have known that what is the power of magical hexagon. This is the Harry Potter's broom baby, sorry बेटा आपके लिए, this is the Harry Potter's broom for all you. Whenever you are dealing in the trigonometric identities, this magical hexagon will always show you the magic. Clear? So please practice on this all, over this also. Opposites, vertices, product is 1. चलो जी कर दे start. Now see, what are the t ratios? Sin theta, cos theta, tan theta, secant theta, number 5 cosecant theta, number 5 cosecant theta. Okay, done. Now what we have to do beta? Number 1 step I have already told you. Number 1 step should be go for the reciprocal. जिस भी टी रेशो की टर्म में आपने शो करना है, आप उसके रेसिप्रोकल को पकड़ लो। आपको किसमें शो करना है, कोट में शो करना है। Yes or no? You have to express all the t ratios in terms of quote, then go for the reciprocal of quote. Can you get it? Okay, tangent theta is 1 by cot theta, yes or no? First answer you have obtained, first answer you have obtained. Clear? Now for second one, follow the identity, follow the identity. And what is the, which is the triangle for cot? This one is this square plus this square is equal to this square. It means cosecant theta, cosecant square theta तक आप पहुंच सकते हैं यहाँ से. From here you can achieve
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट थीटा. See, I am explaining beta. According to this, 1 plus cot square theta is cosecant square theta. Yes or no? And if I shift this one towards right, what it will be? Cot square, yes, we have to express in terms of cot. Now it is already expressed ना, cosecant को express करना, cot को थोड़ी. Very simple. Cosecant square theta is 1 plus cot square theta is cosecant square theta. तो यहां से आप लिख सकते हैं, बड़ा सिंपली आप कर सकते हैं बेटा, फॉर कोसिकेंट थीटा. ये आपने फाइंड आउट करना है, तो यहां से लिखे एज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. बाय आइडेंटिटी देयरफॉर कोसिकेंट थीटा इज square root of 1 plus cot square theta. This is the second answer you obtained. Dear students, you got my point. Number 1 reciprocal, number 3 identity को देखें. Number 3 identity का reciprocal ले लो. इसका reciprocal, identity का reciprocal कौन सा है बेटा? See, cosecant का उल्टा कौन है? Sin. Yes or no? हो जाएगा बेटा इजीली बेटा. तो साइन का उल्टा है, साइन है इसका उल्टा, इसको 1 बाय में कर दे कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. सॉरी, यस और नो, यू गॉट दिस आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? बड़ा इजीली आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया. नाउ कोस एंड कोसिकेंट, सॉरी कोस एंड सीकेंट. कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. आप किसी भी एक को ले लो. चलो देखो, हम मान लो कोस को लेना चाहते हैं, तो कोस कहाँ है? ये है. तो कोस का प्रोडक्ट होएगा साइन इंटू कोट. साइन इंटू कोट विल गिव यू कोस. क्लियर? ये होता है बेटा कोट इंटू साइन. तो कोट की तो आपको जरूरत है ही, और साइन की वैल्यू है 1 बाय ये, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बाय में आएगा ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. डन स्टूडेंट्स? वेरी इजी. और जब सीकेंट की बारी आई तो कोट कोस का उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल लो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाय कोट थीटा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. हमने साइन की वैल्यू कोट की टर्म्स में फाइंड आउट कर ली, कोस की वैल्यू कोट की टर्म्स में. कहीं भी कोट के अलावा तो कोई टी रेशियो यूज नहीं हुई ना. टेन भी कोट की टर्म्स में, सीकेंट भी कोट की टर्म्स में, कोसिकेंट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कोट. आया समझ में? नहीं आया? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बेटा, वेरी फ्रेंकली अगर आपने देखा हो तो पावर ऑफ मैजिकल हेक्सागन आपने यहां से देख ली होगी कि मैजिकल हेक्सागन अगर आपको वेल नोन है तो आप कितने अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टी रेशो को इन टर्म्स ऑफ अनदर टी रेशो, एंड वेरी इन अ वेरी इफेक्टिव एंड इजी मैनर. बेटा बहुत इफेक्टिव मैनर है ये, वरना स्टूडेंट्स इन पे कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो ऐसे करो वो ऐसे करो. नो, अगर मैजिकल हेक्सागन आपके पास है तो ये हथियार जो है ये आपके पास है तो ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है. ओके, क्लियर? डन बेटा. टेक द स्क्रीनशॉट. You have taken the screenshot. Done? Now see. Okay, 2 T ratios you have proved according to your question. One I am going to solve by myself for your practice only. For your practice only. Okay? Only for your practice I am going to express all the T ratios in terms of whatever you want बेटा. किसी ना किसी T ratios की फॉर्म में हम शो करते हैं. चलो मान लो, first of all draw the magical hexagon. Draw the magical hexagon. Sin, tan, secant, cos, cot, cosecant. Opposite product is 1. Opposite product is 1. See students, I am deliberately want you to मेक यू लर्न लिटिल बिट फास्टर. देखो, अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे सोचता हूं. देखो, सी सपोज आई हैव टू एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन.
इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन। सी मैं क्या करूंगा, शुरुआत मेरे माइंड में सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा माइंड ही उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट कोसिकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, फर्स्ट आंसर विदाउट एनी डिले। सबको लिख के बाद में रेसिप्रोकल ढूंढना, कीप इन योर माइंड। फर्स्ट आपने सभी टी रेशोस को एक्सप्रेस करना है साइन की टर्म में, कर लो यार, कैसे बड़ी शुरुआत करो ना, एज यू आर थिंकिंग एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, नंबर टू में करूंगा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, देयरफॉर कोस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फ्रॉम हियर कोस थीटा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड टास्क डन। गोट माय पॉइंट। इस तरह से करना है, वो तो मैंने आपको लिख के समझाया था, आपने अपने नोटबुक में भी इस तरह से करना है। नंबर 1 रेसिप्रोकल ले लिया, नंबर 2 आइडेंटिटी अप्लाई की, वहां से रिलेटेड टी रेशियोस फाइंड आउट कर ली। नंबर 3 एज, अब इसका रेसिप्रोकल देखना है, सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय कोस, देयरफॉर सीकेंट इज इक्वल टू 1 बाय, इसकी वैल्यू पुट कर दो कोस की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर, अब आ रहा है समझ में। फर्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, देन आइडेंटिटी वाली जो टी रेशियो है उसका रेसिप्रोकल। नंबर 4 अब आपके पास बचा क्या है, देखो बेटा, कोसिकेंट आ गया, कोस आ गया, सीकेंट है, टेन एंड कोट बचा है। टेन एंड कोट से देख लो किसी का प्रोडक्ट आ रहा हो, किसी का भी प्रोडक्ट उठा लो। सपोज ये है, सीकेंट क्या होगा बेटा, कोसिकेंट क्या होगा, ये इंटू ये, कोसिकेंट इज इक्वल, कोसिकेंट वी हैव ऑलरेडी यू फाइंड ना फाउंड। ओके, हमने क्या फाइंड आउट करना, टेन कोट रह गया, सॉरी बेटा, टेन और कोट रहे हैं ना हमारे पास, तो टेन या कोट किसी की वैल्यू निकाल लो। सॉरी इसकी जरूरत ही नहीं है, टेन और कोट रहे हैं, आप ये लो ली, साइन इंटू सीकेंट क्या है, 10 है, एज साइन इंटू सीकेंट इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, एज 10 इज इक्वल टू साइन इंटू सीकेंट। दिस इंप्लाइज दैट 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन तो साइन ही रहेगा, और सीकेंट की वैल्यू ये है ना, इसको यूज करो यहां पे, बाय में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आंसर। नंबर 5 कोट इज इक्वल टू 1 बाय 10, कोट इज इक्वल टू 1 बाय 10, तो इसका रेसिप्रोकल उठा ले, हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। दिस इज द लास्ट आंसर। Clear beta? I think now you all have the command and you all know how we can show all the things. Clear? How we can express all the things. Done? Take the screenshot. Okay beta? तो आप इस तरह से सभी को कर सकते हैं। Clear? Done? Now next question. Question number 3. Now students, I am going to rough it and we are going to start solving the different identities and not solving, proving, because beta this is the very important fact that is started here. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस हैं, जो भी है, कितने भी टोटल क्वेश्चंस हो, अकॉर्डिंगली इवन हर एक क्वेश्चन, single to single question I am going to solve here. You all have to just pay attention. Number 3. See beta, what is question here? Cos square theta plus cos square theta into cot square theta is equal to cot square theta. See beta, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास क्या होगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, आपने हर जगह प्रूव करना है। क्लियर? सॉरी, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हर जगह, आपने यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के लेके जाना है। इन सम क्वेश्चंस आप कैसे यूज करेंगे सॉरी आप कैसे यूज करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या राइट हैंड साइड को लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में आपको दोनों साइड्स पे लेनी पड़ सकती है। डू नॉट वरी, बड़ा सिंपली करेंगे हम। वी विल हैव फन। लेफ्ट हैंड साइड cos square theta plus cos square theta into cot square theta. This is the left hand side.
देखो बेटा, मैं आपको आज एक 3 स्टेप्स बता रहा हूं, 4 सॉरी, ये 4 स्टेप्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। ये क्वेश्चंस क्या, इन क्वेश्चंस में इनका बाप भी आके खड़ा हो जाए तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बट आपको दिमाग में 4 स्टेप्स जो है बिल्कुल क्लियर रखने हैं। नंबर 1, ऑलवेज ट्राई फॉर आइडेंटिटी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है या कोई जोड़ तोड़ करके कुछ कॉमन लेके कुछ डिवाइड करके कुछ करके बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है तो आपकी सेकंड सोच क्या होगी? सेकंड सोच आपकी ये होनी चाहिए बेटा, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको? आइडेंटिटी का मतलब बेटा वही जो 3 आइडेंटिटी जिनके मैंने प्रूफ करवाए थे, साइंस के थीटा, कोस के थीटा 1, सीकेंट के थीटा माइनस टेंजेंट के थीटा 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, उनमें से कोई डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्ट दिखता हो। अगर वो भी अगर एलिजिबल नहीं है, नंबर 3, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन टोस, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। जितनी भी टी रेशोज यहां पे हैं, इन सबको साइन और कोस की टर्म्स में तोड़ दो और उनको सोल्व करना शुरू कर दो। क्लियर? डन? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है बेटे यहां पे अलजेब्रिक ऑपरेशन, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, वो भी नहीं बन रही, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो ब्रेक कर दो साइन कोस में। नंबर 4, साइन कोस में ऑलरेडी है और आगे ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या करोगे? फिर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी है ना, राइट हैंड साइड को लेकर शुरू करो, लेफ्ट को लेकर शुरू करो तो उधर देखना, उधर लेके चलो तो इधर देखना, राइट हैंड साइड की टर्म्स लेके आनी है ना? राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स यानी कि यू कैन से टी रेशोस, राइट हैंड साइड में जितनी भी टी रेशोस है उनको बनाओ। क्लियर? ये 4 स्टेप अगर दिमाग में है, इनको ऊपर ऑपरेशन करना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहने वाला। क्लियर हुई बेटा मेरी बात? चलो अभी यहां पे शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जैसे केसेस सामने आएंगे आपको पता लगता चलेगा। डोंट वरी, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मजा आने वाला है। नाउ सी बेटा, यहां पर कोस है, यहां पर भी कोस है। आई कैन इजीली assume here that if I take cos common, one identity will be formed. Yes or no? Very first step of your thought process, whatever I have said, it is dependent on your thoughts. What is your thought process? Number 1, the point you think that, you should think that, is it possible to make any identity, trigonometric identity? Yes, very easily. If we take common here cos, we can get the trigonometric identity. Now see beta, cos square theta common. Here into 1 is there na, 1 plus. It is gone, cot square theta will be here. Yes or no? Done students? Very simple. And now see, cos square theta into, what is this? Use the magical hexagon. और अब तक तो आपको आइडेंटिटीज याद ही होंगी। एक लेक्चर आपने लगा लिया और अपने शुरू में 2 एक्सप्रेशन किए, तो आइडेंटिटीज के ऊपर वर्क करो बेटा। दैट शुड बी मेमोराइज्ड एट टिप्स, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। नाउ सी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। डन? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट थीटा। बेटा एक बार मैजिकल हेक्सागन को देखो, आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। साइन, टेन, सीकेंट, कोस, कोट, कोसिकेंट। देखो कोस को बनाते ही ये लो, पहले बनाओ इसको। ये था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आया ना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोस इंटू कोसिकेंट, कोस इंटू कोसिकेंट क्या बन रहा है भाई साहब? कोट। एंड दिस इज इक्वल टू कोट। ऊपर स्क्वायर है दोनों के, यही है राइट हैंड साइड। बताओ मुश्किल था क्या? बताओ। अगर आपको मैजिकल हेक्सागन है, बताओ इसने पूरी की पूरी हेल्प की। आपकी थॉट प्रोसेस आपके पास है। यू आर हैविंग योर ओन परफेक्ट थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच यू आर मूविंग। योर स्टेप्स आर अकॉर्डिंग टू दैट योर थॉट प्रोसेस दैट आई हैव गिवन यू।
and you are using your mind, how you can use this magical hexagon in the question, you are getting the perfect desirable output. Yes or no beta? Done? Okay, हो जाएगा ये. Now see. Clear? First question, third question done. Question number 4. Question number 4, dear students. Very, very, very easy questions are going now. Oh, one more question. See, in this question again we will use our thought process and you will get the desirable result. Number 4. Number 4. You see beta, what is given here? Secant theta 1 minus sin theta, secant theta plus tangent theta is equal to 1. Left hand side. Left hand side. Secant theta 1 minus sin theta, secant plus tangent theta. Yes or no? Yes or no students? You can easily observe what I am going to do. What I am saying, secant plus tangent है, secant square minus tangent square 1 बनता है यहाँ पे. इस आइडेंटिटी तक पहुंचने की कोशिश करो. पहुंच गए. सी कैसे? इनसाइड मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसको अंदर भेजो. क्या होगा? secant into 1 secant theta, secant into sin theta. Yes or no? And here keep it as it is, secant plus tangent. हाँ जी दोस्तों, क्या हुआ? ये देखो, secant into sin, secant into sin बोल रहे हैं भैया. टेंजेंट आओ, कम दिस साइड, इसको हमने लिख दिया टेंजेंट. क्लियर? ये है ही secant प्लस टेंजेंट. ओके, ये है ही secant प्लस टेंजेंट. हाँ जी, आपने इसके बारे में सुना है, a प्लस बी, a माइनस बी. इस बेस पे आरबीएससी में बहुत क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री पे. आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस सर नो डियर स्टूडेंट, मेक सम नॉइज. a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. And what is secant square theta minus tangent square theta? Second identity 1 and this is right hand side. Yes or no? And this is right hand side. Clear students? Done? Okay. Okay. Next question. Question number. You want to take the screenshot? You can take the screenshot. Clear? Now see. Now we are going to solve next question. Because ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है यार, आप बिल्कुल सीधा करते जा रहे हैं. आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स तो आप में से ऐसे डायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस पे लग चुके हैं, उनको तो आप ये याद होने लग रहे हैं. हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, ऐसी आवाजें मेरे कान में गूंज रही है. कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं पीछे. क्वेश्चन नंबर 5. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सॉरी इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा. ये आपने प्रूफ करना है भाई. देखो, कोसिकेंट और कोसिकेंट एंड सीकेंट आइडेंटिटी नहीं बनती इनकी आपस में. कुछ कॉमन वगैरह भी लोगे तो क्या लोगे? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं. लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कुछ कॉमन भी नहीं बन रहा यार. फिर क्या किया जाए? एटलीस्ट कोई तो ऐसा कुछ दिखता. सेकंड थॉट प्रोसेस, क्या कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है यार? ये तो प्लस में नहीं बन रही, इनका प्लस भी कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं. तीसरा स्टेप, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस. ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस. कोसिकेंट क्या है बेटा? उल्टा है साइन का. 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा. एम आई राइट? बताओ कहां कुछ गड़बड़ है? बहुत इजी, वेरी 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 इजी होने वाला है अब सब कुछ. सी, अरे मजा आ रहा है तो यार लाइक, बड़ी गुस्सा आता है यार आरबीएससी स्टूडेंट, आप तो लाइक ही नहीं करते वीडियोस पे. ना कोई कमेंट्स है, ना कोई लाइक्स है. वेरी बैड. नाउ टेक द एलसीएम. साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. डन?
दिस विल डिवाइड दिस, ये इसको काटेगा, ये बचेगा कोस स्क्वायर इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, ये कैंसिल रिमूव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? हाँ जी भैया, आइडेंटिटी दिखाई दे रही है आपको? यस और नो? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड व्हाट इज हियर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या चाहिए? हो तो गया 1 इंटू 1, 1 का तो कुछ भी लिख दो। 1 बाय साइन क्या होता है भाई साहब? कोसिकेंट। एंड 1 बाय कोस क्या है भाई साहब? सीकेंट, सॉरी। और यही क्या है भाई साहब? राइट हैंड साइड। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? श्योर? डन? बड़ा इजी था ना? बिल्कुल सिंपली बेटा। लेफ्ट को लिया, फर्स्ट थॉट प्रोसेस फर्स्ट। यार कोसिकेंट और सीकेंट की तो कोई आइडेंटिटी नहीं बना सकते। चलो कोई बात नहीं बन रही है तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमने क्या किया, फिर दूसरा प्रोसेस हमने देखा कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन सकती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं आता क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट पे फिर कोई रिलेशन नहीं है। हमने गए थर्ड थॉट प्रोसेस पे। थॉट प्रोसेस का थर्ड स्टेप, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। हमने साइन और कोस में ब्रेक किया। ब्रेक करते ही सिंपल ऑपरेशन एलसीएम लेते ही आइडेंटिटी दिखाई दे गई और आइडेंटिटी ने इसको खत्म